انتخابات انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں گے، کیا سب خوش ہیں؟ انتخابات کی تاریخ پر کسی فریق کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ چیف جسٹس کا فریقین سے استفسار، معاملہ تمام فریقین کی رضامندی سے حل ہو گیا۔ عدالت عظمیٰ کا تاریخ کے معاملے میں کوئی کردار نہیں، سپریم کورٹ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ صدر کے پاس تاریخ دینے کا اختیار تھا جو استعمال نہیں کیا گیا۔ عدالت کا صدر کی جانب سے عدالتوں سے رہنمائی لینے کی بات پر اظہار حیرت۔ ملک میں عام انتخابات عوام کا استحقاق ہیں، سپریم کورٹ نے حکم نامے کے ساتھ تمام درخواستیں نمٹا دی۔ انتخابات کے انعقاد کے لیے سب کو پابند کر دیا، کوئی رہ تو نہیں گیا۔ چیف جسٹس کا دوران سماعت استفسار، اگر کسی سے فیصلے نہیں ہو پا رہے تو وہ گھر چلا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، عدالت صرف یہ کہہ سکتی ہے کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے۔ 90 روز میں انتخابات کرانے سے متعلق کیس کا حکم نامہ جاری، کہیں ایسا نہ ہو کہ شام کو ٹی وی پر خبر چلے کہ پتہ نہیں کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ انتخابات نہ ہونے کی خبریں چلنے سے عوامی رائے متاثر ہوتی ہے۔ چیف جسٹس کی میڈیا پر انتخابات سے متعلق مایوسی پھیلانے پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کو پیمرا سے کارروائی کرنے کی ہدایت۔ قومی اسمبلی کی تحلیل عدم اعتماد کی تحریک روکنے کے لیے کی گئی۔ اس وقت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اسمبلی توڑ کر آئینی بحران پیدا کیا گیا۔ اسمبلی تحلیل کا اختیار اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے صدر عارف الوی کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے پر سوالات اٹھا دیے۔ کیس کے حکم نامے میں 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کا بھی ذکر۔ 15 سال پہلے آج ہی کے دن آئین پامال ہوا۔ آئین کی پامالی کا خمیازہ ملک اور عوام کو بھگتنا پڑا۔ ملک بھر میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی ایکٹ کے سیکشن 57 کے تحت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا۔ سب کو الیکشن کا چاند مبارک ہو۔ بہتر ہوتا الیکشن کے لیے سپریم کورٹ کو مداخلت نہ کرنا پڑتی۔ بلاول بھٹو کا انتخابات کی تاریخ کے اعلان پر رد عمل، انتخابات کی تاریخ کو بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ دہرا دیا۔ پی ٹی آئی خود لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا کہہ رہی ہے تو ویلکم ٹو دا کلب۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کی تاریخ خوش آئند قرار دے دی۔ الیکشن یوم حشر بھی ہوتا ہے اور یوم احتساب بھی۔ ایسا الیکشن ہونا چاہیے جس کی شفافیت پر سوالات نہ اٹھے۔ سینیٹر شہزاد وسیم کا سینٹ میں اظہار خیال، پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین نے نگراں حکومتوں کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ الیکشن 90 دن میں ہونے پر اتفاق ہے، آئین کی دیگر شقوں کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ مردم شماری منظور ہو جائے تو الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی، حلقہ بندیاں لازمی ہوتی ہیں۔ اسحاق ڈار کی سینٹ میں گفتگو، کچھ قوتوں کا مقصد تھا پاکستان دیوالیہ ہو جائے، اپوزیشن اور حکومت مل کر مفادات کا تحفظ کریں، سابق وزیر خزانہ کو مشورہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ انتخابات کی تاریخ دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن پہلے صدر سے ملاقات کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ 90 روز میں الیکشن نہ کروا کے الیکشن کمیشن نے آئین کو روندا ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کی عدالت عظمیٰ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ سب کی خواہش تھی انتخابات وقت پر ہو، اب سب کا کام ہے انتخابات کو صاف اور شفاف بنائیں۔ الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرے۔ وکیل تحریک انصاف بیرسٹر علی ظفر کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو۔ بنتی بھی ہیں ان کے آشیرواد سے اور حکومت ٹوٹتی ہیں بھی ان کی ناراضگی کی وجہ سے۔ آپ کی حکومت بھی ان کی سپورٹ سے بنی؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ حکومت اگر وہ نہ چاہتے، عمران خان کے اختلافات ان کے ساتھ نہ ہوتے تو شاید یہ حکومتیں نہ بنتی۔ پی ڈی ایم حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنی، سابقہ اتحادی سردار اختر مینگل نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ الیکشن کے موقع پر نواز شریف کی واپسی مشکوک قرار۔ تفصیلی انٹرویو آج شام 7:05 پر ڈان نیوز پر نشر ہوگا۔ مزدور بھی جانتا ہے کون کس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ ہے، کیا یہ حقیقت نہیں فیض آباد دھرنے کے ماسٹر مائنڈ جنرل فیض حمید تھے؟ ہمارے خلاف ذہن بنایا گیا کہ چور لٹیرے ہیں، آج بھی نئے لوگ ہمیں مسلس دکھا رہے ہیں۔ جاوید لطیف کی پریس کانفرنس، جیل میں ایک شخص کو 5 سٹار ہوٹل کی طرح لگژری سہولیات دی جا رہی ہوں، لیگی رہنما کا الزام۔
नून लीग ने कौमी और सूबाई असेंबलियों के टिकट्स की कीमत मुकर्रर कर दी। उम्मीदवारों को कौमी असेंबली के टिकट के लिए 2 लाख और सूबाई असेंबली के टिकट के लिए 1 लाख रुपए अदा करना होंगे। टिकट के ख्वाहिशमंद अफराद को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद के इजहार का फॉर्म भी भरना होगा। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में जमानत पर रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। साइफर मुकदमा सियासी बुनियाद पर बनाया गया। हाई कोर्ट मुकदमे की सियासी बुनियादों को ज़ेरे गौर न ला सकी। दरखास्त में मौक़िफ़ साइफर और फॉरेन फंडिंग केसेस FIA की बदनीयती करार। चेयरमैन पीटीआई को कल व्हाट्सएप पर अपने बेटों से बात करने की इजाज़त मिल गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने अहकामात जारी कर दिए। इसराइल ने गाजा में जंगी जरान की तमाम हदें पार कर दी। जबालिया के बाद अलबरीज पनाह गुज़ीन कैंप पर बम बरसा दिए। मजीद कई फलस्तीनी जान से हाथ धो बैठे। अल-कुद्स अस्पताल के करीब हमले, इमारतों के मलबे के ढेर में 2000 से ज्यादा फलस्तीनी लापता। बच्चों की लाशें ना मिलने पर वालिदैन की आहो बका। 28 रोज से जारी हमलों में शहदा की तादाद 9200 तक पहुंच गई। 4000 के करीब बच्चे भी शामिल। इसराइल ने जमीनी कार्रवाई के दौरान गाजा का मुकम्मल मुहासरा कर लिया। काबिज अफवाज का गाजा की गलियों में गश्त। गाजा के साथ मगरबी किनारे में भी फलस्तीनियों पर जमीन तंग कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 9 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। सहूनी अफवाज का लबनान सरहद पर हिजबुल्लाह के कारकुनों को भी शहीद करने का दावा। इसराइल से लड़ने के लिए शाम हिजबुल्लाह को रूसी साख्ता मिसाइल दिफाई सिस्टम फराहम करेगा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN का दावा। हमास और हिजबुल्लाह ने सहूनी फौज को तिकनी का नाच नचा दिया। हमास फाइटर्स ने मजीद 6 इसराइली टैंक्स और 2 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी। सुरंगों से निकलकर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल ने अपने मजीद 4 फौजियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी। अब तक 335 से ज्यादा इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह सरबराह कुछ देर में खिताब करेंगे। हसन नसरुल्लाह मज़ाहमती तंजीम की अगली हिकमत अमली से मुताल्लिक अहम ऐलान करेंगे। सहूनी फौजियों ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज़े जुम्मा पढ़ने से रोक दिया। मस्जिद तक जाने की कोशिश करने वालों पर आंसू गैस की शेलिंग। कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइल की वहशियाना बमबारी में फलस्तीनी मां की खुशियों की तलाश। मां ने मलबे के ढेर पर अपनी बच्ची की सालगिरह मनाई और बच्चों के साथ गीत भी गुनगुनाया। अमरीकी वजीर खारजा फिर तिल अबीब पहुंच गए। इसराइली रहनुमाओं से आम फलस्तीनी शहरियों को निशाना ना बनाने का मुतालबा कर दिया। गाजा में इंसानी इमदाद भेजने के मामले पर भी गुफ्तगू। एंटोनी ब्लिंकन सहूनी हुकाम से मुलाकातों के बाद उर्दुन जाएंगे, जहां वो अरब इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात करेंगे। गाजा में इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। दमिश्क में हाथ सुर्ख करके और अलामती लाशें उठाकर रैली निकाली गई। तेहरान में गाजा से इजहार यकजहती के लिए फलस्तीनी परचम के रंगों वाले गुब्बारे फजा में छोड़े गए। लंदन की गलियां फलस्तीन के हामियों से भर गईं। म्यूनिख में शहदा की याद में शमाएं रोशन की गईं। इसराइली जारियत के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। गिलगित, रावलाकोट, पाकपतन, हैदराबाद में मुजाहिरीन का फलस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। मेडिकल टीमें फलस्तीन भेजने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध का सूबे की यूनिवर्सिटीज में ज़ेरे तालीम 48 फलस्तीनी तलबा की हर किस्म की फीस मुआफ करने का ऐलान। जामियात को फलस्तीनी तलबा के लिए स्कॉलरशिप का बंदोबस्त करने की हिदायत। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की डेरा इस्माइल खान धमाके में 6 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वाक़ये में मुलव्विस मुलजिमों को गिरफ्तार करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी में तेजी। गुज़श्ता रोज 19,500 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। अफगानिस्तान वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 1,62,000 से तजावुज़ कर गई। मुल्क भर में गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कराची में 2 दर्जन से ज्यादा गैर कानूनी अफगान बाशिंदे आर्जी पनाहगाह मुंतकिल। क्वेटा में 600 गैर कानूनी तारकीन वतन ज़ेर हिरासत। IMF की पाकिस्तान के सहमाही अहदाफ हासिल करने के इक़दामात की तारीफ। माशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद को भी सराहा। मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। तकनीकी के बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का तारीख साज रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 486 पॉइंट्स इजाफे से मुल्क की तारीख में पहली बार 53,123 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एक हफ्ते की कमी के बाद मुल्क में महंगाई की शरह फिर बढ़ गई। हफ्तावार महंगाई में 0.71% इजाफा, सालाना शरह 29.88% तक जा पहुंची। कराची के इलाके क्लिफ्टन में नशावर अशिया बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। एक्साइज पुलिस ने मंगले से हशीश और नशावर कार्टेज बनाने वाली 2 मशीनें कब्जे में ले ली। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नेदरलैंड्स का अफगानिस्तान को जीत के लिए 180 रन का हदफ। सी ब्रांड 58 रन बनाकर नुमाया रहे। 4 बैटर्स रन आउट होकर पवेलियन लौटे। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने 3 और नूर अहमद ने 2 विकेटें ली। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान कल वर्ल्ड कप के अहम मैच में बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगा। खिलाड़ियों ने भरपूर प्रैक्टिस की। सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए कौमी टीम को कीवीज से अच्छे मार्जिन से मैच जीतना जरूरी है। शिकस्त की सूरत में कौमी टीम मेगा इवेंट से बाहर हो जाएगी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी और चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी की मुलाकात। ज़का अशरफ की साबिक स्टार क्रिकेटर के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। जल्द दूसरी मुलाकात पर इत्तेफाक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ की मुद्दत कल पूरी होगी। चेयरमैन पीसीबी के मुस्तकबिल के हवाले से समरी निगरान वज़ीर आज़म को मौसूल। वज़ारत मैन सूबाई राबता ने समरी में वज़ीर आज़म से राय मांग ली। निगरान सिंध हुकूमत का जंगली हयात की बका के लिए बड़ा फैसला। सूबे में रवा साल शिकार की इजाजत वाले इलाकों में आइंदा साल इजाजत नहीं होगी। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर की गैर मुल्की परिंदों और इंडस डॉल्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात की हिदायत। रोजान में बैलों की मंडी सज गई। रंग बिरंगी पोशाक पहने बैलों की नुमाइश। हल चलाने और दौड़ने के मुकाबलों का भी इनेकाद। सिंध में मुलाजमत पेशा अफराद के लिए हर जिले में सरकारी कॉलेजेस शाम में भी फाल करने का फैसला। सेक्रेटरी कॉलेजेस ने स्टाफ और तजर्बागाहों के लिए सामान की रिपोर्ट मांग ली। और चनियोट के 11 साला बहन भाई कमर मुनीर और खबरुन्निसा का बड़ा एजाज। आइल्स में 9 बैंड हासिल किए। डीपीओ ऑफिस चनियोट के दौरे पर इस्तकबाल। शोबा पुलिस में दिलचस्पी का इजहार। शायर मशरिक इकबाल के यौम पैदाइश के मौके पर 9 नवंबर को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। काबीना डिवीजन से छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। और लंबी जुदाई की बातें करने वाली बुलबुल सहरा। रेशमा को मद्दाहों से जुदा हुए 10 बरस बीत गए। उनके गीत आज भी रोजे अव्वल की तरह मकबूल हैं।